जो फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड यानी ऑलरेडी वो खर्चा ना आप कम कर सकते हो ना ज्यादा कर सकते हो, वो फिक्स्ड है, करेक्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो बदलते रहता है। जब दोनों को मिलाओगे, एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा हुआ दोनों का, आपको मिलेगा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, सी हियर इट इज गिवन। So as explained over here, you can figure out what it is mentioned also. So average fixed cost is nothing but the per unit fixed cost of production. Per unit means one single. Again, I'm saying you. Per unit means one unit. How much fixed cost are you having? कितना आपका fixed खर्चा है? कितना आपका fixed खर्चा है एक यूनिट प्रोड्यूस करने में, वो बन जाता है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. Here is the formula. And what is variable cost? वेरिएबल कॉस्ट वन यूनिट प्रोड्यूस करने में, ओके, वन यूनिट प्रोड्यूस करने में आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना था. व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? इट कीप्स ऑन वेरिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट इज मार्जिनल कॉस्ट. नाउ व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन. जैसे हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते थे, additional utility that we derived from additional unit of commodity consumed. Similarly, अगर हमारा जो टोटल खर्चा हुआ उसके बाद if we are supposed to produce additional unit, see we have learnt in terms of marginalism and incrementalism principle, right? तो मार्जिन मतलब हम एक्स्ट्रा कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं. एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रा टू होम? एक्स्ट्रा टू द टोटल. Addition means here we mean extra. Extra of whom? Extra of what? Extra to the total cost. That becomes your marginal. Margin. ठीक है. So, or cost of producing an additional unit. See, again it is mentioned here. Cost of producing an additional unit of output. You thought of producing additional unit because the demand for your commodity is increasing. People are demanding more of your commodity. Are you not going to produce? You will produce. So after producing everything, after getting the total cost, still if you're supposed to produce anything extra, you will need extra money for that. आपका एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, आपको और रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा और आपको लेबर को हायर करना पड़ेगा. सो दैट इज नथिंग बट द कॉस्ट. आपका एक्सपेंडिचर हुआ ना वो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. So that is why that becomes your marginal cost. Now, what is the formula? In order to calculate it, you have a formula. Marginal cost is equal to change in total cost. Now, what is change? Change is denoted by the term delta. It is not over. It is not come over here. It is actually this delta. Okay? It is delta. This triangle. We have seen it so many times. What it is known as? Delta. And what does it mean? It means change. पहले कितना था, हम अब एड ऑन कितना कर रहे हैं. एड ऑन बोला, हाँ, हम और कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने वाले हैं. दैट बिकम्स योर चेंज. फर्स्ट यू हैव प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स. नाउ दैट दिस इज योर टोटल. नाउ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस 20 मोर. एड, मैं इसके लिए एड का साइन डाल रही हूँ क्योंकि दिस विल शो यू द चेंज. यानी एड ऑन कितना किया, एडिशन कितना हुआ, 20. तो आपने कितना परसेंट ये किया, आपने 20% और प्रोड्यूस किया. सो दैट बिकम्स योर चेंज, मोर. ओके. सो here how are you going to find out the cost? Additional cost made to the last. आप -1 करोगे क्योंकि आप अगर एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करो, एक, हाँ, एक की बात हो रही है अभी यहाँ पे, एक एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शन को निकाल दोगे तो यू विल गेट नथिंग बट द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट आपने 100 प्रोड्यूस किया, आप 101 प्रोड्यूस करने जा रहे हो. अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने 100 प्रोड्यूस किया.
अब आप 101 प्रोड्यूस करने जा रहे हो, यानी 1 लास्ट यूनिट पे आपका जितना खर्चा हुआ वो आपका हो गया मार्जिनल कॉस्ट. Okay, anybody who is interested in reading this example over here? Mansi, read. Marginal cost. It is the additional made to the total No, cost read or it from here cost. till here. Read it from here Okay, till here. Example, if total cost of producing 2 car is rupees 3 lakh and the total cost of producing 3 car is rupees 4 lakh 50,000, then the marginal cost of rupees 1 lakh 50,000, that is the cost of producing an additional unit of output. So what is being said over here? This is our total cost. Sorry, this is our total unit of output produced. ठीक है, इसको प्रोड्यूस, 2 कार को प्रोड्यूस करने के लिए वी टुक 3 लाख रुपीस, हमारा 3 लाख का कॉस्ट आया 2 कार प्रोड्यूस करने के लिए. अब इफ वी आर प्रोड्यूसिंग द थर्ड कार, दिस इज द टोटल, और यू कैन से दिस बिकम्स योर टोटल कॉस्ट, दिस बिकम्स योर टोटल कॉस्ट. एडिशनल यूनिट ऑफ कार इज द थर्ड कार. अब हमारा खर्चा टोटल कितना हुआ? 4,50,000. यानी जो थर्ड कार हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारा खर्चा कितना हो रहा है? 1,50,000. बिकॉज व्हाट आर वी डूइंग? 4,50,000 माइनस 3 लाख, यानी लास्ट जो थर्ड कार है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा 1,50,000 डालने पड़े. दैट बिकम्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. And with this, we have finished our cost concept. Next lecture, when we meet, we'll be starting up with chapter number 10, that is cost and output analysis. Clear till here? Yes, ma'am. सबको clear है? Yes, miss. Next lecture 10th chapter. आज हमारा आधा पोर्शन हुआ है, अभी हमें और 8 चैप्टर भागने हैं, दौड़ना है. हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर ऑन टाइम.